ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بڑا ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ ناظرین حضرات، چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کی۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو یہ اوریجنل ویڈیو دیکھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آپ نے یہی آنا ہے۔ اس کے بعد براق پر پھر سوار ہوئے۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے، تو آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا پورا نام تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی میں قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اب آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، راہ زنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے
अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गरज उन्हें जर्रा बराबर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चिथड़े लटके हुए हैं। वो ऊंट और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़क़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़क़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी करवाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्ते और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आएंगे। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में कुछ इंतहाई बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थी, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थी जिनके खावन थे, लेकिन वो इनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वास किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी ज़बानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगल खोरों के नाखून तांबे के थे और वो इनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे इंतहाई भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मोंगे, शहद, दूध और शराब के जामो कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता होगा, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, न ही मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। और जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। मेराज की रात अंबिया से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहां आपने एक बहुत बदनुमा आवाज सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्रील ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज है। ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीर और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और इसकी भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम के इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक
بدنیت, بدमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफर में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ा इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल अज़ा जाहिलियत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होठ ऊंटों के होठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन है? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा हुआ था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी। एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ताला को ही मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आ घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वहीं रह गए। बदली की जगह बास रिवायात में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरील अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाजें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आजम के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहां एक नहर पर पहुंचे। उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खेमे लगे हुए थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मैंने देखा इसमें याकूत और जमरुद के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। आपने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पानी पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था।
آپ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر نہیں کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جیسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات تک نہیں کی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی ہنسا ہی نہیں، اگر یہ ہنس بھی سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح کے دونوں ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے واقعے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस जमीन पर तशरीफ ले आए। जब आप बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़ कर गए थे। यानी मेराज का ये वाकया अजीब और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में ही पूरा हो गया। यूं समझे कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बायस ये मौजज़ा इंतहाई थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकत नमाज अदा किया करते थे और रात में क़याम किया करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फर्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये ज़ोहर की नमाज थी। उसी रोज उसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसीलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत जाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि ये नाम इसी बुनियाद पर रखा गया हो, क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकत पढ़ाई और कुरान करीम आवाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज से क़िरात की गई, आखिरी रकत में क़िरात बुलंद आवाज से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब यह है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, क्योंकि उस वक्त क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मौज़मा में रहे उसी की सिमत मुंह करके नमाज अदा करते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में ये नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहां से कहां तक हैं। इस तरह ये 5 नमाजें फर्ज हुई और इनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नजर आते हैं नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरीह गुमराही में मुब्तला है। नमाज का तरीका भी आसमान से ही नाजिल हुआ और हमें नमाज उसी तरह पढ़नी होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पढ़ते रहे। ये बात भी साबित है कि फर्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकिर 5 नमाजों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ 3 फर्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया है, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात है ही झूठ। दूसरी ये कि जब अहादीस से 5 नमाजें साबित है तो किसी भी मुसलमान के लिए उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नमाजों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हिस्से रखी हैं। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के जरिए करता है, यानी आंख, नाक, मुंह, नाक, आज़ाओ जवारे यानी हाथ पांव। लिहाजा नमाजें भी 5 मुकर्रर की गई हैं ताकि इन 5 हवासों के जरिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं वो इन 5 नमाजों के जरिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं। ये भी याद रखें कि मेराज के वाक़ये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित करता है कि आसमान हकीकत में मौजूद है।
मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस का ये नजरिया है कि आसमान का कोई वजूद नहीं बल्कि ये कायनात एक अजीम खला है। इंसानी निगाह जहाँ तक जाकर रुकती है वहाँ इस खला की मुख्तलिफ रोशनियों के पीछे एक नीलगू हद नजर आती है। इसी नीलगू हद को इंसान आसमान कहता है, लेकिन इस्लामी तालीम ने हमें बताया है कि आसमान मौजूद है और आसमान इसी तरतीब से मौजूद है जो कुरान और हदीस ने बताई है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में आसमान का जिक्र है, बाज़ आयात में 7 आसमानों का जिक्र है, जिनसे मालूम होता है कि आसमान एक अटल हकीकत है, न कि नजर का धोखा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।